Myself Pranjit Sekia, and I'm from Guwahati, Assam. I'm your host, EJOG, once again back on a lovely demand from the team in the community of arm wrestling. It's good to be back on a weekend, and we are right here with our series, Hot Talk, an episode, a collection of presenting you the awesome stories of these awesome athletes from the sport of arm wrestling. Oh, my dear friends, I am sure you all must be doing better now, and I'm sure we all have got used to the present environment which Uncle Corona has given to all of us. But let us fight it out with this amazing session that we will have with one of the new athletes, a new story, right here today with us. My dear friends, I am presenting you the Hard Talk, episode number 5, with an athlete who needs no introduction in the field of the awesome arm wrestling. He is 6 times national champion. He has been the 6th position holder for Asian Arm Wrestling Championship, Kazakhstan 2017. He is also the COC for 2017 IAF. You know, बुलडॉग के फर्स्ट सीओसी रह चुके हैं ये for the year 2018. In fact, the proud feeling is the fact that an athlete of his experience today is also the president of Assam State Arm Wrestling Association. उनके yesteryears में he was a junior COC from 2013 to 2015 for the Arm Wrestling Sports Association. Presently ranked number 4th in the URPA World Ranking Series, and the first official referee for BCAI, certified by PAL, Professional Arm Wrestling. All my friends, ladies and gentlemen, and all the viewers, please welcome one and only the Om Hunter, Pranjit Saikia. How are you, Pranjit? Hey Uzi, how are you? I'm fine. Good. Well, first of all, good evening, and I'm so back to be back in this amazing, heart wall arm wrestling talk show, and I'm super excited to be your host, who's going to be grilling you with some sessions. Are you ready? Yeah, I'm ready. How are you feeling? Otherwise, Pranjit, कैसा लग रहा है? How are you, and how is the weather in your hometown? Yeah, मस्त है, सब पूरा मस्त है, अभी तक चल रहा है। मस्त है। ठंडा है, बरसात के मौसम है, बारिश चल रहा है इधर। Sorry viewers, I would like you all to know that Pranjit is Mr. Cool Guy, who comes and hails from Assam, if I'm not wrong. Am I correct, Pranjit? Assam? Yeah, absolutely right. Guwahati? Yeah, Guwahati.
Okay, and well, presently Pranjit is definitely, going back to his routine. As you see, he's wearing an amazing, I think, the most privileged T-shirt in the arm wrestling sport. And well, the whole idea about getting you on this grind session is, Pranjit, tell us about your first of all the journey into arm wrestling. 2013 में मतलब मुझे स्टार्ट हुआ, मतलब मेडल मिल रहा है, मतलब मेडल क्या है मुझे दिखाई दिया, मतलब ट्रॉफी मेडल पोजीशन क्या है मुझे, मतलब ये सब पता चला। मतलब 2013 से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। उससे पहले तो आपका 10, 11, 12 मतलब हारा मैंने एकदम ओहो, मतलब हार के तब आपका 2013 से मतलब, हाँ मेरा मतलब ट्रैक में मेरा ट्रेन आ गया मतलब। बहुत जरूरी है हारना। बच्चों, हर एक स्पोर्ट्समैन हाँ की एक अच्छी हिस्ट्री रहती है, और उसकी हिस्ट्री में रंजीत, आई एम श्योर, गिरना, लूज करना, उससे सीखना, तो आई थिंक आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। वही, जब आप गिरते हैं तभी आपको पता चल रहा है ना उठने का मजा क्या है आप हाय नहीं हाय, गिरेंगे क्या तो बात वही है, है। क्या बात है, क्या वही बात है। है। तो 2013 से मतलब अभी तक 2000, लेकिन 2016 मेरा गेम थोड़ा खराब, मतलब खराब नहीं, मैंने खेला ही नहीं 2016 को, बट 13 से ओके, लेके 2019 तक मेरा सही था गेम। अभी तक कोई मैंने मतलब पोजीशन मेरा फर्स्ट ही था अभी तक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय वाह, द ग्रेस ऑफ माय वाह, मॉम एंड डैड। वही। वाह। और वही ऐसा अभी तक। अभी नेक्स्ट गेम क्या होगा वही, और मेरा हार्ड वर्क के ऊपर तो डिपेंड तो ये प्रांजीत, ये स्ट्रेंथ जीन जो आपके अंदर है, जो आप बोलते हो कि शुरू से ही आप जीतने की आप में वो जो भूख थी, और आपने यू स्टार्टेड विनिंग, तो इज इट कमिंग बैक फ्रॉम योर फैमिली जीन्स, लाइक एनीवन इन योर फैमिली हुज? हाँ, मेरा मेरा पापा भी खेलते थे, को आपका शॉर्ट फुट बोलते क्या हैं ना बात। उसको, शॉर्ट फुट। आहा। हाँ, शॉर्ट फुट खेलते थे। मैं मम्मी भी खेलते, मतलब खेलता था तो अभी वही। और मे बी, और उन लोग, वो लोग टाफ भी है दिखने में तो उन लोगों से आया शायद मेरा इंस्पिरेशन वही है, हाँ। पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो वही है मेरा, मम्मी पापा ही है। तो क्योंकि प्रंजीत, मतलब कि मॉम और डैड का जीन्स आपके पास एब्सोल्युटली ओरिजिनल फॉर्म में चला गया है। हाँ, हो सकता है हाँ। गुड। बट लेकिन ये मुझे बताइए कि हम्म प्रंजीत, मुझे ये बताइए कि आई नो मॉम एंड डैड हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी सक्सेस, विच आई थिंक इंडियन फैमिली में तो ये मतलब 100% दिखता है। पेरेंट्स सपोर्ट इज ऑलवेज देयर इन हम्म मेकिंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट। बट आप मुझे ये बताइए कि इफ यू कैन टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर फैमिली। आई एम श्योर सारी व्यूअर्स, सारी कम्युनिटी जानना चाहेगी, Pranjit Saikia, besides being an athlete, what is his family and what are you doing these days? आपका मेरा फैमिली, हम लोग ओरिजिनली गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक सिटी है गुवाहाटी, मतलब बहुत फेमस, मतलब जो आपका हब होता है नॉर्थ ईस्ट का, जो हब है Right. ये गुवाहाटी, तो हम लोग उधर से बिलोंग करते हैं। और आप, मेरा घर है आपका गुवाहाटी का उजान बाजार में। तो ये मतलब फर्स्ट सिविलाइज कॉलोनी है गुवाहाटी का, उजान बाजार इज द फर्स्ट सिविलाइज Okay. कॉलोनी। तो हम लोग इतना भी बड़ा फैमिली से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली। तो वैसा ही, और नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास फैमिली चलता है हम भी चलते हैं वैसे, कोई Very दिक्कत nice. भी नहीं है। Very, वही, तो अभी हाल very ही nice. में वही मेरा पापा गुजर गए, आपको सबको Oh, पता है। okay. I'm so sad to hear, but our आपका prayers. एक महीना हो गया शायद पापा गुजरने का। Okay. तो Okay. वही, और अभी चल रहा है। So I'm हाँ, sure now you will have a lot of responsibility. वही वही मेरा अभी, जो पापा रहने से जो मुझे 30% मेरा हेडेक था, अभी 100% मेरा प्रेशर हो गया अभी अभी आप बिग पापा बन जाएंगे सबके लिए। हाँ, वही। और वेरी नाइस। पापा बट ये पापा मुझे होता बताइए, हम्म एब्सोल्युटली मैं आपके आपके साथ एकदम 100% हूँ इस बात पे, एंड आई एम श्योर वेर एवर ही इज, हिज प्रेयर्स, हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज सपोर्ट विल बी देयर फॉर यू, Pranjit. But besides that, now to come back into the sports, आपने बोला कि मैंने खुद ही स्पोर्ट्स सीखा है, बट was there any inspiration when you started the sports, जब आपने ये स्पोर्ट को एक्सेप्ट किया
I would like to, be a part of this हाँ journey. So was there anybody in your journey as a coach or as नहीं a mentor? नहीं मतलब क्या है, मैं जब स्कूल में था क्लास 7 8 में, तब मुझे पता था, मतलब तब पता चला कि स्ट्रेन कैसे देते हैं, कहाँ कहाँ, मतलब तभी कुछ होता है ना कि हाँ मेरा थोड़ा पावर तुमसे ज्यादा है, मतलब पावर शो कैसे करते हैं? किसी हाँ, को हाँ, मार के या पीट के पावर शो करना तो लीगल नहीं है ना, तो लीगली कैसे शो करे? तो बिल्कुल, लीगली एज आपका बिल्कुल, खेल के थ्रू वैसा शो करता है ना, तभी आर्म रेसलिंग ऐसा गेम था कि आप कहीं पे भी कर सकते थे आर्म रेसलिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्लास जब 7 में था, मुझे अभी भी पता है, मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ मतलब मैं हम्म। दो हाथ से भी, मतलब उसका इतना पावर था, तो उसका उसके साथ मैं दो हाथ से हाँ, मतलब उसको नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हिला भी नहीं पा रहा था उसको तभी। तभी जब मेरा ठीक है। पहला इंस्पिरेशन है मेरा हार, मैंने हार से सीखा है। क्या बात है। पहला इंस्पिरेशन मेरा उस हार वक्त है। कोई देख रही थी, कोई देख रही थी, कोई देख रहा था जिससे वो इफेक्ट आया, कि नो केवल नो हार नो के नो नो कारण नो वो नो आपको। हार ही है मेरा, मतलब हार ही है, मतलब कोई देख रही थी कोई देख रहा था उससे मतलब नहीं है मेरा मतलब हाँ, एक ही मतलब हाँ। है, मैं हार रहा था। अच्छा, ठीक है, मुझे अच्छा। मैं खुद देख रहा था कि मैं हार रहा था, कोई हाँ, दूसरा देखे हाँ, वही मुझसे मतलब नहीं है। हाँ, हाँ। वही है, तभी जब हारा 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 उसके बाद जितना हारा, और लोग मुझे बोलते थे कि, मतलब दोस्त लोग बोलते थे तेरे से नहीं होगा, मतलब जितना मैं ये हम्म। बोलता था कि तेरे से नहीं होगा, तब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता था। क्या मेरे से नहीं होगा क्या? आज मैं 10 केजी कर रहा हूँ डंबल्स, मैं कल थोड़ा 5 केजी बढ़ा के करता था। क्या तो बात है। हो गया उसके बाद आपका, मेरा एक इंसिडेंट था, मतलब ऐसा इंस्पायर वाला इंसिडेंट आपका। 2012 तक तो मैंने हारा। हम्म। 2011 में मेरा, हम लोग का असम में बिहू होता है, बिहू आपको पता है ना, बिहू बिल्कुल। असम में बिहू होता है। बिहू में हम लोग का इधर में आपका जो मंच पे जो बिहू होता है, तो करेक्ट। ऑल ओवर असम में फर्स्ट टाइम हम लोग का इधर ही हुआ था। फर्स्ट मंच का जो बिहू है, तो इधर ही होता हुआ था, स्टेज में जो होता है वो हम लोग का उजन मजर में ही होता है। हम लोग का एक फील्ड है, लटासिल फील्ड, उधर में होता है। तब एवरी ईयर उधर में आर्म रेसलिंग होता है आपका, अरे वाह। लोकल्स के लिए एवरी ईयर। तब मुझे, हम लोग को पता ही नहीं था क्या आर्म रेसलिंग था, क्या था, कुछ पता ही नहीं था। वैसे ही खेलते थे हम लोग आर्म रेसलिंग टेबल में। तो एक साल प्रैक्टिस करते थे उधर खेलने के लिए, सिर्फ सिर्फ उधर खेलने के लिए। तब मैं जब हम्म। छोटा था, तब आपका जब हम लोग का क्लब था एक, तब तक जिम भी नहीं था, अभी जैसे मल्टी जिम हुआ था, तब तो ऐसा जिम भी नहीं था। मैं जब बिल्कुल। छोटा था क्लब में जाता था, ऐसे पर्दा निकाल, ऐसे पर्दा पर्दा मतलब खींच के देखता था। तो बड़े बड़े मेरा भैया लोग होते थे उधर में ना, तो हम लोग को भगा देते थे, मतलब हम लोग का एज का नहीं है, तू छोटा है, जा हम लोग इधर से, हम लोग खेलने बिल्कुल। दे। तब मैं भाग जाता था, गाली वाले देके मुझे भगा देते थे। तब लोग, मैं हम्म। देखता रहता था कि वो लोग कब निकलेंगे। वो लोग जब निकलते थे, मैं डायरेक्ट क्लब में एंट्री करके पूरा, मतलब जो भी हो, मुझे पता नहीं था क्या, मतलब वर्कआउट कैसे करते थे, क्या करते थे, ऐसे हम्म। लटकता रहता था, ऐसे पुशअप ऐसे ट्राई करता रहता था वैसे ही। तब क्या हुआ एक बार, बिहू में हार के 2011 में मुझे नहीं 10 में मुझे पता है वो। तो 2010 में मेरे घर में जो काम करने वाला लड़का है, वो मेरे साथ एक ही वेट में था, वो भी खेला था ऐसे, मतलब उसके साथ मेरा एक साथ हो गया मैच। तो तो आपका क्या हुआ, उसका पावर मुझसे ज्यादा था ठीक तो है। हार गए तुम। मैं हारा तो हारा ही, उसके बाद मेरे भैया लोग ने वीडियो किया, उसको वीडियो करके पूरा मोहल्ले को दिखाया ओ तो तब तो मेरा बहुत मजा आ गया होगा। बहुत, मतलब मेरा लग गया, मतलब इधर में, मतलब मैंने उनको बोला मेरा भी टाइम आएगा एक दिन, देखो। हाँ। 2010 में हारा, 2011 में प्रैक्टिस किया, हारा, 2012 में मैंने लास्ट हारा। हम्म। 2013 में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने, जूनियर सीनियर दोनों में मैंने गोल मारा। वाह। 2013 में जब गोल मारा मैंने, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का इधर में क्या है, हम लोग का इंस्पिरेशन कैसे देता है, आप लोग, आपको बताता हूँ आदमी लोग। जब मैं क्लब में जब जीता, मैंने डिस्ट्रिक्ट जीत गया, उसके बाद मेरा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जीत गया मैंने, डिस्ट्रिक्ट जीत के मैं क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया। उसके बाद एक क्या हुआ, लोग मुझे मुझे उन लोग को बोलना चाहिए कि भाई तूने तो मजा कर दिया। वो लोग मुझे क्या बोले, भाई तूने तो डिस्ट्रिक्ट जीत लिया, लेकिन स्टेट थोड़ा टफ होगा तेरे लिए, क्योंकि स्टेट में ये प्लेयर है, वो प्लेयर है, ये प्लेयर खतरनाक है, ये प्लेयर फास्टेस्ट है बहुत। जब मेरे कान पे ये सब पड़ा, मेरा और खतर गया दिमाग, तो मैं फिर से ज्यादा मारा उसके बाद क्या ये ऐसा है क्या? तो ज्यादा प्रैक्टिस किया मैंने। मतलब उन लोगों का डिस, मतलब
मतलब और डिसइंस्पिरेशन मैंने इंस्पिरेशन जो खराब तरीके से दिया उस उन्होंने, मैं उसको मतलब मेरा अलग तरीके से लिया मैंने उसको। तो वैसे बिल्कुल। प्रैक्टिस किया, तो स्टेट में भी मैंने सबको मारा गोल, जूनियर में वाह भी गोल, वाह सीनियर में भी गोल। उसके बाद वाह। क्या हुआ, वही लोग जिसने मुझे स्टेट में वो बोला था, जिस स्टेट के बंदे के मतलब प्लेयर्स के लिए बोला था कि स्टेट का प्लेयर्स बहुत ज्यादा टफ है, तू नहीं सकेगा। तो जब मैंने स्टेट में किया, वही बंदे मुझे बोला तू नेशनल में, लेकिन ये केरला बहुत स्ट्रांग है, ये हम्म बहुत स्ट्रांग है, ये प्लेयर पंजाब का प्लेयर बहुत स्ट्रांग है। तो हम्म। फिर से मैंने वही मेरा शेड्यूल जितना भी मुझे स्ट्रांग बोलता है मैं उतना ज्यादा मारता हूँ जिम में क्या ज्यादा बात वर्कआउट है, करता है। क्या बात है। हाँ, तो आपका जो जो बंदे लोग मुझे क्लब में स्टेट में बुला मतलब कहते थे, मतलब कहते थे कि हाँ तू स्टेट नहीं सकेगा, वो भी नेशनल में भी सेम डायलॉग मारने लगे कि हाँ ये बंदा है, ये टीम केरला टीम बहुत स्ट्रांग है, पंजाब का बिल्कुल। बंदे हैं बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब डीमोटिवेट करता था वो लोग, मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट। तो उन लोगों में डीमोटिवेट मोटिवेशन की तरह रहता था, इसलिए मैं ज्यादा वेरी प्रैक्टिस नाइस। ज्यादा मेहनत करता था। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल में मैंने जूनियर में भी गोल मारा, सीनियर में भी गोल मारा, ओके। और जूनियर सीओसी नहीं मारा, जूनियर गोल सीनियर दोनों में गोल मारा। तो हम्म। कंटिन्यू तो वही साल मैंने डिस्ट्रिक्ट जूनियर सीनियर गोल, स्टेट जूनियर सीनियर गोल, नेशनल जूनियर सीनियर गोल, कंटिन्यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो वाह। 2013 से नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, और है अरे बाप रे। 2013 से आपका 2015 तक जूनियर जूनियर था, मतलब तब जूनियर सीनियर 2015 तक कंटिन्यू गोल्ड मेडल। और आपका 2016 में मैंने खेला नहीं है, मैंने एक गेम ही खेला 2016 में, लामडिंग में जो हम्म। हुआ था, वो पूरा साल में मैंने एक मैच ही खेला। उसके बाद 2018 में फिर से मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब मतलब सीनियर सीओसी गोल्ड मेडल फिर से स्टार्ट हुआ। मतलब अभी हम्म। वही, और बाय द ग्रेस ऑफ माय मॉम एंड डैड मेरा अभी तक गोल्ड ही रहा है अभी तक, वही है। एंड वी ऑल विश कि आपके आने वाले सालों में भी आपको केवल गोल्ड और रियल गोल्ड और गोल्ड ही मिलते रहे। वही और रंजीत, इस दौरान जब आपने मतलब इतने डिफीट्स को फिर उसको पॉजिटिव लेके आपने स्पोर्ट में फिर से फोकस करके जो आपने अपनी जर्नी बताई है, बट टेल हाँ। मी एज अ रूटीन आप क्या करते थे उस दौरान, मतलब व्हाट वाज योर रूटीन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग योरसेल्फ परफेक्ट फॉर दिस आर्ट, मतलब आप कितने घंटे करते थे इन पे काम, और बॉडी के फिटनेस के लेवल के लिए आप क्या क्या करते थे? नहीं, जब जब 2013 में 14 में 15 में मुझे पता ही नहीं था फिटनेस क्या चीज है, आपका प्रैक्टिस हम्म। वर्कआउट कैसे करते हैं, टाइमिंग डाइट कुछ भी पता नहीं था, मुझे सिर्फ पता था ओके। कि प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, मतलब ऐसा चीज है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना सकोगे, मतलब इतना आपका तो पावर आप बढ़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करते थे, मतलब मतलब क्या मैं करते थे प्रैक्टिस के लिए? मैं जो भी फ्री टाइम जिम में तो मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब मैं बिल्कुल। फ्री हैंड क्या है आजकल, मतलब आजकल ऐसा कुछ बदल गया है माहौल, क्योंकि आजकल जिम में जब कोई नया बंदा अगर एडमिशन लेता है तो उसको डायरेक्ट मशीन पे डाल देते हैं, फ्री हैंड्स का कोई अच्छा। नाम ही नहीं। तो आपका पहला क्या चीज है, आपका बॉडी वेट कंट्रोल। आपका खुद का बॉडी वेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप वेट्स करके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद का ओके। बॉडी वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहले हम लोग का क्या होता था क्लब में, मशीन्स नहीं था, मल्टी मशीन्स कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आपका पुलअप्स, पैरेलल डिप्स, पुशअप्स ये सब भी था। तो ये सब हम्म। कर करके पहले हम लोग, अभी भी मैं एक बार में 100 पुशअप करता हूँ, अभी भी वो स्ट्रेंथ अभी भी वाओ। रह जाता है, मतलब अभी भी वो स्ट्रेंथ कभी नहीं जाता है फ्रेन वाला स्ट्रेंथ। तो फ्रेन में हम लोग बहुत कुछ करते थे। और जब भी मेरा फ्री टाइम मिले, मैं घर में जब भी, मतलब फ्री टाइम था तब, पढ़ाई था, कॉलेज स्कूल था, कॉलेज था, बिल्कुल। और आपका शाम को जिम था। उसके बाद कभी कभी संडे, कभी वो स्कूल या कॉलेज नहीं होता है तो पूरा दिन घर में खेल वेल भी था, मतलब ऐसा आर्म रेसलिंग पहले खेलता था, लेकिन आर्म रेसलिंग जब आर्म रेसलिंग स्टार्ट किया तब से आर्म रेसलिंग करता रहता हूँ। तो घर में सिलेंडर विलेंडर ऐसे उठाना, मतलब जोश था, मतलब टारगेट था, एक प्लेयर के पास एक प्लेयर को टारगेट था कि मैंने एक प्लेयर को हम्म। हरा दिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन प्लेयर है, मतलब बिल्कुल। जिसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ, मतलब उसको हराना नहीं चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ उसके साथ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मेरा वही थिंकिंग है, क्योंकि मैं किसी को हराना नहीं चाहता, किसी के साथ मेरा कोई क्लैश नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लेयर्स है, टेबल में हम लोग एनिमी है, लेकिन उसके बाद तो हम लोग फ्रेंड्स है ना।
तो मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, हराने के लिए मैं नहीं खेलता हूँ किसी को। वही बात है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो उस वक्त के दौरान मतलब आपने जैसे बताया आपको बेसिकली उतना मतलब नॉलेज नहीं था इन हम्म। टर्म्स ऑफ वेदर इट्स फूड डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सब नहीं था, बट यू आर हम्म। बेसिकली अ नेचुरल फाइटर, एम आई करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। और मैं क्या होता था वेरी आपका, जब जब क्लब में प्रैक्टिस करता था मतलब, तो मेरा घर पास में ही है क्लब का। तो क्लब ओके। में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते जब कभी कभी मतलब पावर नहीं लग रहा है, हार रहा हूँ प्रैक्टिस में, तब क्या करता हाँ था, जी, मैंने मेरे दोस्त लोग को मैं बोलता था तू रुक जा रुक जा रुक जा। मैं दौड़ के घर में जाता था, 2 अंडा बॉईल खाता था, फिर से क्लब में आता था। क्या मतलब बात है। ऐसा दो वैसा अंडे खाने से मतलब हो जाते थे मतलब शरीर में मतलब फिर ताकत आ जाती थी? वो नहीं पता है, खाने अंडे खाने से। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हाँ आता होगा वही साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मतलब अंडे खा के आया मैं, इसको अभी हराना है, मतलब वही है। शायद। ठीक है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपकी जूनियर कैटेगरी चल रही थी, आप सीनियर्स के भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वाज देयर एनी इन्फ्लुएंस, एक कोई लीडर जिनको आप रिकग्नाइज करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे? कोई लीडर, कोई एथलीट सीनियर जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, ट्रेन किया, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? आपका एक्चुअली क्या है, मेरा अगर ट्रूथ बोले तो मेरा कोई पर्सनल, मतलब मेरा सीनियर प्लेयर जो मुझे पर्सनली ट्रेन करता है, उसके साथ मैं ट्रेन होता हूँ, वैसा कोई भी नहीं था। क्या बात है। मेरा मतलब क्या है, मैं सबसे सीखा हूँ, मतलब सबसे थोड़ा 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 करके सबसे सीखा हूँ, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं। तो मेरा मतलब हम लोग का एरिया में ही बहुत आर्म रेसलर्स थे, मतलब मैं सबके सबसे थोड़ा 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 सीखा हूँ, लेकिन कोई मुझे सिखाया नहीं है कि तू ऐसा कर, तेरे लिए मैं मतलब हमेशा, मतलब एक जैसा कोच होता है ना, मतलब तू जा हाँ, तू लड़, वैसा मुझे अभी तक कोई पीछे से बैकअप नहीं मिला। और ये तो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब यू आर अ सेल्फ टॉट एथलीट, और आप लोगों के इंस्पिरेशंस और लोगों के सक्सेस को देख के आपने खुद अपने आप को मतलब होन किया इस स्किल के लिए कि आप जीते, विच इज ब्रिलियंट रंजीत। वेरी ये नाइस, और गुड टू हियर। आपका, हाँ क्योंकि अभी तक जितना भी मुझे सीनियर एथलीट मिले सब, मतलब लास्ट में सबका यही डर था मुझे। एक एक ने बोला भी मुझे, क्यों मुझे क्यों नहीं सिखाता है परफेक्टली, एक ने मुझे बोला भी है, क्योंकि अगर वो मुझे परफेक्टली सिखा दिया, उसका हारने का डर है मतलब मेरे से। अच्छा। बिल्कुल, तो बिकॉज वही ये स्पोर्ट इसीलिए। बहुत बहुत क्लोज नेट स्पोर्ट है, मतलब हर हाँ एक चीज हर एक एथलीट सीखना चाहता है, और हर एक चीज के हर एक फील्ड इस स्पोर्ट्स में मतलब एक प्रोफेशनलिज्म अपना लाना चाहता है। सो डेफिनेटली हम्म, उसके सीक्रेट्स अगर आप समझ लेंगे तो मतलब उसका पत्ता तो हाँ काट ही लेंगे ना आप रंजीत। हाँ, वैसा वैसा मेरे मेरे हिसाब से वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। हम्म। आपका सीक्रेट्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट पावर। टेक्निक्स तो हम्म। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग टेक्निक्स में ज्यादा खेलते थे, अभी भी खेलते हैं टेक्निक्स में, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स। लेकिन हम लोग को जब एक्सपीरियंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इट्स टोटली नॉट अबाउट प्रैक्टिस, मतलब नॉट, इट्स नॉट अबाउट आपका जो टेक्निक्स, नॉट प्रैक्टिस, ओके, टेक्निक्स। बिल्कुल। पावर भी बहुत जरूरी है, 80% पावर चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आपका पावर नहीं है तो आप टेक्निक्स यूज ही नहीं करेंगे, मतलब यूज कर ही नहीं सकेंगे, ऐसा चीज वेरी है। नाइस रंजीत, तो हाँ फैंटास्टिक यार, मजा आ रहा है आपके साथ, मतलब टू नो द वेरी फैक्ट्स अबाउट योर जर्नी इज द बोलते हैं ना कि सही फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स जर्नी के। नो कोच, नो मेंटर, सेल्फ ट्रेन्ड, ब्रिलियंट। संजीत, अभी मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी जो इस इंडस्ट्री में है, थोड़ा बात करेंगे फेडरेशंस के बारे में, सो जहाँ तक मुझे पता है, the knowledge that I've got over the years about the sports, how has been your journey with IAF? मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करूंगा, मतलब 2013 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक 3 फेडरेशन में खेला हूँ। तो मुझे Okay, परफेक्टली पता है कि कौन सा फेडरेशन से मुझे क्या मिला है, फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, और मतलब क्या क्या मतलब झेला है हम लोगों ने एज अ प्लेयर, मतलब एक एक फेडरेशन से। सो बिल्कुल। 2013 में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ फेडरेशन फेडरेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फेडरेशन क्या है क्या चीज है पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ ये दिखाई देता था, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मैं खेल सकूं, अपने आप को बिल्कुल। मतलब काबिलियत मतलब दिखा सकूं कि हाँ मेरा स्ट्रेंथ है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब खेल सकता हूँ मैं भी। तो 2013 में हम लोग का इधर का ही, आप लोग आप सबको पता है, उसका मैं नाम नहीं बोलूंगा।
तो वो बंदा सीनियर था, सीनियर अभी भी है बहुत हम लोग से, तो अभी भी खेलता भी है, सीनियर भी है। तो वो बंदा हम लोग का मतलब वो, जैसे आपको कोई अगर मेडल मार कर मेडल लगा दिया नेशनल में, तो हम लोग उसका पीछे मतलब हाँ ये बंदा, इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करने से हम लोग का भी पावर बढ़ेगा, उसको हम फॉलो बिल्कुल। करते। तो तब हम लोग उसको फॉलो किया था हमने। तो वो जहाँ कहता था हम लोग वही खेलते थे। ठीक है। तो मुझे एक बात बहुत बाद में पता चला, वो मैं आपको बाद में बोलूंगा। 2013 में आर्म स्पोर्ट एसोसिएशन था, एक नया नया बना था, अच्छा। आर्म स्पोर्ट एसोसिएशन। तो उधर में मैंने 2015 तक खेला। तो 2015 के बाद मुझे लगा कि मैं 2015 से 13 14 15 3 साल नेशनल चैंपियन था। तो 3 साल नेशनल चैंपियन के बाद मुझे वर्ल्ड खेलने का चांस क्यों नहीं मिला? तो 3 साल नेशनल चैंपियंस के बाद मुझे वर्ल्ड खेलने का चांस मिलना चाहिए, 3 बार वर्ल्ड खेलने का। बिल्कुल। तो मुझे चाहिए था कि मैं कितना आगे से इंडिया का मतलब मुझे पीछे मेरा जर्सी के पीछे इंडिया का टैग लगाना था, मतलब ऐसा था मेरा कुछ। बिल्कुल सही। तो 3 साल मुझे लगा कि मुझे इंडिया का टी शर्ट जर्सी क्यों नहीं मिला और मैं क्यों नहीं जा पा रहा वर्ल्ड। तभी मुझे पता चला कि वो एसोसिएशन आपका वर्ल्ड में है ही नहीं। वो ओ, एसोसिएशन, हाँ वो एसोसिएशन आपका नया बना था तब। मगर वो पहले से ही बोल रहे थे कि अगर आप जीतेंगे तो वर्ल्ड हाँ चैंपियनशिप हाँ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ओ, ठीक ठीक है। है। तो वो नया बना था एसोसिएशन। उसके बाद 2016 मेरा क्या क्यों बर्बाद गया, एकदम ट्रूथ क्यों बर्बाद गया मैं आपको बताऊंगा। तो 2016 में तभी मुझे पता चला कि आईएफ के बारे में, इंडियन हम्म। आर्म रेसलिंग फेडरेशन। तो मुझे आईएफ में जाना है अभी, क्योंकि आईएफ मुझे मैं इंटरनेट में देखा, कहीं पे भी देखा, आईएफ में वर्ल्ड होता है, बाहर में लोग खेलने जाते हैं इंडिया से, वैसा था। हाँ। तो 2016 मुझे मतलब आईएफ में ज्वाइन करना था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे आईएफ में ज्वाइन करना है, मुझे इंडिया के मतलब इंडिया से होके खेलना है मतलब बाहर में। तो मेरा वैसा था कुछ। तब क्या हुआ आपका, तब आपको मुझे पता चला तब जब मैं मतलब बिछड़ गया मतलब आर्म स्पोर्ट्स से। जैसे मैंने आर्म स्पोर्ट्स से थोड़ा थोड़ा अलग होकर होता गया, तो वो बंदा था ना एक जो मतलब जिसको हम लोग फॉलो करते थे, वो बंदे से भी हम हाँ। लोग थोड़ा दूर हो गए धीरे धीरे। तो ओके। थोड़ा ईगो ईगो थोड़ा वैसा कुछ था, इसीलिए हम लोग डिवाइड हो गए। तब हम लोग एक साथ ही थे, तब हम डिवाइड हो गए। ठीक है। तो हम लोग का इधर में हम लोग ट्रेजरर है आईएफ का, मैं हम्म। नाम मेंशन नहीं करूंगा, तो सबको पता ही होगा शायद। तो वो उन्होंने मुझे, वो मेरे घर के पास में रहते, तो उन्होंने मुझे बोला तुम इतना दिन कहाँ था? तो मैंने बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं था क्या मतलब एसोसिएशन में क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम हम लोग का एसोसिएशन में ज्वाइन करो, उसके बाद हम्म। करो। तो 2016 में मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब ये दौड़ता भागता वैसा गया मतलब, तो एसोसिएशन के थ्रू मतलब। तो आपका, ओके। हाँ तो 2017 में मैंने फर्स्ट आईएफ का नेशनल खेला। तो 2017 में मैंने खेल के सीओसी मारा आईएफ का। क्या तो बात आईएफ, है। हाँ तो तभी पता चला कि थोड़ा हम लोग का आसाम का थोड़ा आईएफ के साथ थोड़ा वो हो गया था, मतलब आईएफ ने हम लोग का आसाम का पूरा टीम को बैन कर दिया था आपका 2012 में। किस लिए? ये इसलिए बैंड मतलब क्यों होता है? वही है आपका बैन, मतलब देखिए अगर एक पूरा टीम को कोई बैन नहीं कर सकता बिल्कुल, एज एक अ, एथलीट बैंड होता है, कोई कारण हाँ, से बैंड होता है मतलब। और उसका जो कारण है पूरा डिटेल्स में दिखाना पड़ता है कि क्यों बैन हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसा पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था बैन वैन क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी थोड़ा थोड़ा हम्म। पता चला कि बैन वर्ड क्या है एक्चुअली। ये वर्ड मैं बहुत सालों के बाद सुना हूँ, बैन क्या वर्ड है। ओ। तो हाँ तो वैसा कुछ आपका, तभी आसाम का पूरा टीम को बैन कर दिया था, क्योंकि आपका एक मैच हुआ था, मुझे जितना याद है जितना सुनाई दिया मैंने, तो आपका हम्म। मिजोरम में हुआ था, कहीं पे हुआ था मैच, नेशनल चैंपियन था। तो उधर में हम लोग का आसाम का प्लेयर का कुछ इशू हुआ था एक, जो हम लोग का मैं आपको बोला था ना जिसको हम लोग फॉलो करते थे। तो हाँ। उस प्लेयर का इशू हुआ था, एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए पूरा टीम को बैन कर दिया। हाँ और हम्म। एक्चुअली वो टीम, एक्चुअली गलती मेरे हिसाब से दोनों का ही था, प्लेयर का भी था, एसोसिएशन का मेंबर्स हम्म। का भी था। तो मतलब एक हाथ से हम्म। ताली तो बचता नहीं है आपका, ताली बचने के लिए दो हाथ ही चाहिए होगा। तो करेक्ट। वैसा सी चीज है। तो पर्सनली हो गया प्लेयर और एसोसिएशन के बीच में, इसीलिए वो प्लेयर ने क्या किया, पूरा टीम को अपने साथ ले लिया और टीम ही बैन हो गया, पूरा असम का टीम। ओ, दैट्स सैड। हम्म। 2017
तब से 2012 से 2017 तक, मतलब 16 तक आईएफ में असम का नाम ही नहीं है। मतलब ना गोल्ड मेडल है ना कुछ है। 15 रैंक, 16 रैंक, 10th रैंक ऐसा होता है नेशनल में। 2017 में मतलब आ गया और पूरा एकदम नंबर 1 पे आ गया। सब मैंने सीओसी किया और तब से आईएफ स्टार्ट हुआ। उसके बाद ठीक ही था पहले। उसके बाद और एक चीज था आपका, अगर मैंने नेशनल चैंपियन मुझे हो मतलब मैं हो गया नेशनल चैंपियन, हम्म। तो जो वर्ल्ड खेलने का जो वो होता है आपका, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है ना नेशनल का, सर्टिफिकेशन जो सर्टिफाइड, मतलब आप वर्ल्ड सर्टिफाइड है, मतलब जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, वो हम लोग को मतलब वो हम लोग का है। मतलब हम लोग ने उसको जीता, करेक्ट। अर्न किया है ना। तो करेक्ट। उसके थ्रू वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि आपको 20,000 पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसका उसका बाद हम लोग आपको वो सर्टिफिकेट देंगे, मतलब 20,000 देने के बाद देंगे। मतलब वो आप उसके बाद क्या होता है, 20,000 देने के बाद मतलब वो ऐड होता है ओवरऑल में, जो वर्ल्ड का आने जाने का खर्च होता है वो बोलते हैं उसमें ऐड होगा। ये जो भी है ऐड होना होगा या नहीं होगा, 20,000 तो देना पड़ता है। तो नॉर्मली तब थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल अ, बिल्कुल। वही। और पिताजी भी 2013 से देख रहे थे, मम्मी डैडी सब देख रहे थे, तेरा कुछ नहीं हुआ। मतलब तभी मतलब आईएफ भी श्योर नहीं था ना वैसा, तो फिर से 20,000 बिल्कुल। देना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म भी नहीं है ये एसोसिएशन कैसा है। ये सही है, लेकिन आईएफ नंबर 1 एसोसिएशन तब सही था एसोसिएशन। तो धीरे धीरे आईएफ का भी मैं रंग दिखा। मतलब मैं मेरे लिए आईएफ तब सबसे ऊपर था, मतलब तब 2017 तक आईएफ टॉप में था। हम्म। आईएफ के अलावा कोई एसोसिएशन मेरा टॉप में नहीं था, क्योंकि उधर में वर्ल्ड होता है, एशिया होता है। हाँ, बिल्कुल। तब मेरा 2017 में हंगरी के लिए मैं सिलेक्शन मिला था मुझे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट। तब मैंने आईएफ इंटरकॉन्टिनेंटल, आईएफ हाँ, आया 2017 में। 17 में। तो बिल्कुल। मैं हैदराबाद में गया आपका वीजा वीजा इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे मुझे पहले ही पता था, और मुझे बहुत लोग बोले थे भी, तू तू तो एक एथलीट है, तुझे इंटरव्यू क्या देना है, तू ऐसे नेशनल चैंपियन हो गया तो तुझे वीजा ऐसे भी मिलेगा वैसे भी मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी मुझे वैसा उन लोगों को बात, मतलब क्या है, जो एसोसिएशन के लोग बोलेंगे वही मैं सुनूंगा, वैसा था कुछ। को सीनियर्स थे वो लोग, बिल्कुल। बताया उन लोगों को। तो हैदराबाद गया मैंने। हैदराबाद जाके पैसा वैसा पे कर दिया मैंने, 20,000 पे करके सर्टिफिकेट ले लिया अपना। उसके बाद हम्म। हैदराबाद भी गया। हैदराबाद जाके इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू में सही था, सब सही था। उसके बाद वीजा कैंसिल हो गया हम लोग का, और रीजन भी कुछ नहीं बताया। और ओ। हाँ, जो आपका 20,000 लिया था उन्होंने, हम लोग मुझसे मतलब, तो उस 20,000 से कुछ अमाउंट उन्होंने काट दिया। अच्छा। हाँ, मुझे वीजा भी नहीं मिला, 20,000 भी गया, मेरा ड्रीम भी खत्म हो गया, ठीक है। ओ। धीरे धीरे मतलब खेलता मतलब खेल खेल के, मतलब धीरे धीरे उन लोगों का अंदर का मतलब पता चलता रहा मुझे, मतलब चलता गया, मतलब क्या क्या है, ऐसा क्या है, हम्म। मतलब कैसे वो लोग प्लेयर्स को रखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं प्लेयर्स को। मतलब हम्म। वैसा चीज है कि जैसे आपका अभी नॉर्मली एक क्लासरूम में जो बंदा टॉप करता है, टीचर्स जितना भी टीचर्स है, सीनियर्स है, स्टाफ है, उसको ही ज्यादा वो करते हैं। बाकी बाकी स्टूडेंट उन लोगों के लिए स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो टॉप है वही स्टूडेंट है, वैसा कुछ है। तब मैं टॉप था, तो तब मुझे बहुत वाह वाह बहुत मिला मुझे। लेकिन दूसरों हम्म। को मतलब दिखाई देता था मुझे कि नॉर्मली कैसा बिहेव कर रहा है ये लोग, ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग उनके गुलाम है, मतलब, ठीक है। ओके। तो आपका और एथलीट्स, हम लोग इधर से ट्रेवल करके जाते हैं आपका, दिल्ली है आपका, कहीं पे भी है। तो हम लोग का वेदर आपका, बेंगलोर का वेदर थोड़ा सेम है, केरला का वेदर हम लोग का सेम है, लेकिन बाकी स्टेटों का वेदर थोड़ा ड्राई है। तो हम लोग अच्छा। थोड़ा, और गर्मी गर्मी के दिन में गेम वेम होता है, तो हम लोग को थोड़ा बिल्कुल। दिक्कत होता है। तो वो लोग हम्म। आपका, जब मैं पहला बार गया था, तब एक हम लोग को एक ऐसा बड़ा सा कमरा दिया था, उसमें बेडशीट था नीचे आपका। बेडशीट में हम्म। कमरा, हाँ एक, हाँ बेडशीट था, बेडशीट में सारे प्लेयर्स, मतलब किसी ओके। भी, मतलब। तब हम लोग तो वैसे नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग घूमने नहीं गए, हम लोग खेलने गए। अगर हम लोग का एनर्जी उधर में लॉस्ट हो गया तो हम लोग खेलेंगे क्या? 100%। ठीक है, अग्रीड। तो वैसे हम लोग हम लोग झेलते रहे, मतलब हम मैं नहीं रहा उधर में, हम लोग का टीम नहीं रहा उधर में, हम लोग एक्स्ट्रा होटल लेके
जब हम लोग ने एक्स्ट्रा होटल लिया अपने पैसे से, उन लोगों को पैसा पे किया हम लोगों ने, लेकिन रजिस्ट्रेशन का पैसा पे किया, उधर में आपका ट्रेन का फी आता है, रहने का एकोमोडेशन का फ्री आता है, और फूडिंग का फ्री आता है, और मतलब सब मिलाकर मतलब जितना भी 1000 समथिंग था, हम लोग ने पे किया उसके बाद। तो हम लोग पे करके भी नहीं रहे, क्योंकि उस हालात में रहने का मतलब कुछ हो ही नहीं है, मतलब आप कभी कहीं स्ट्रगल मतलब रह ही नहीं सकते उधर में आप, टॉयलेट अच्छा नहीं बिल्कुल। है, अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग होटल्स में रहते थे, ठीक है, होटल्स अपना मतलब पर्सनली रहते थे हम लोग। अब हम ओके। लोग जो होटल में रहते थे, वो उससे भी उन लोगों का प्रॉब्लम है, अरे बाप रे। मतलब क्या बोलेंगे, और उससे भी प्रॉब्लम है उन लोगों को, हम लोग को उधर ही रहना पड़ेगा, मतलब वो मतलब क्या जो जालिम आपको। लोग, हाँ हाँ क्या, ओह। मतलब वही, और हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना मस्त मस्ती करने के लिए जा रहे हैं, तो हम्म। और हम लोग को स्लीपर क्लास में ही जाना पड़ेगा ट्रेन में, अगर मैं फ्लाइट में जाने का मेरा अगर वो है, मतलब मैं जा सकता हूँ, लेकिन हम लोग को स्लीपर में ही जाना पड़ेगा, कोई फ्लाइट वाइट नहीं है, वो गर्मी में स्लीपर में ही जाना, एसी में भी जा नहीं सकते आप, ठीक है, अरे बाप रे। मतलब धीरे धीरे पता चलता गया हम लोग को, और मतलब ये तो सोल्जर ट्रेनिंग वाली बात हो गई ना। तो वो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग और वार अलग है, ठीक है, हम्म। ट्रेनिंग में आपको पूरा मेहनत, ट्रेनिंग में आपको जो ट्रेन करता है वो आपको पूरा पीसता है, वो अलग है, लेकिन करेक्ट। जब जब वार होता है ना, आपको एकदम खा पी के एकदम बढ़िया से एकदम आराम से जाने के लिए मतलब लेके जाता है, क्योंकि आपको बहुत करेक्ट। फाइट करना है उसके बाद, ठीक है, आपका स्टेमिना आपका सब खत्म, इधर ही खत्म हो गया, तो आप फाइट क्या करेंगे, सही बात है। तो वार बिल्कुल। वार ऐसे नहीं जीत सकते ना, तो वो लोग तो अच्छा। मतलब तो मतलब हर एक चीज पे रिस्ट्रिक्शन था एक एथलीट के लिए। हाँ, मतलब हम लोग बहुत जेल जेल के मतलब अभी अभी इधर पहुंचे हैं, मतलब हम लोग को एकदम इजीली नहीं मिला कुछ भी। ओके। तो मतलब अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। अपने स्टेट के लिए खेलने भी जाएंगे, गाली भी सुनेंगे, अच्छी तरह से रह भी नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे, और कुछ आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, प्रोटेस्ट करेंगे तो बैन आप, वैसा कुछ चीज है, तो वही, और ये पिछले आप हमारे एक्चुअली फिफ्थ इनवाइटेड गेस्ट एथलीट हैं, और मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी एथलीट्स को हमने इनवाइट किए हैं, जो कि हर एक डिफरेंट स्टेट से हैं, हर एक का एक चैलेंज है। सो ये जो ट्रीटमेंट, ये जो बिहेवियरल पैटर्न है आईएएफ का, ये अभी भी ऐसा ही है कि पुराने टाइम में था, और अभी ये लोग थोड़े एटलीस्ट थोड़े तो इम्प्रूव हुए होंगे। नहीं, आपका इम्प्रूव क्या है पता है आपको, इम्प्रूव कौन होता है, जो इम्प्रूव होने के लिए चाहता है, हम्म। ठीक है, वो लोग इम्प्रूव होने के लिए नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है इधर से, अच्छा। अगर वो लोग चाहते हैं तो, वो लोग चाहे तो आपका आर्म रेसलिंग एसोसिएशन का जो फेडरेशन का जो वो है, वो कब का रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मिजोरम में भी रिकॉग्नाइज है, केरला में भी रिकॉग्नाइज है, स्टेट्स में रिकॉग्नाइज है, तो इंडिया में क्या है, 40 साल से बड़ा ज्यादा हो गया आर्म रेसलिंग करते हुए, और इंडिया मेरे हम्म। हिसाब से थर्ड कंट्री, आर्म रेसलिंग का थर्ड कंट्री है इंडिया, फर्स्ट हम्म। सेकंड थर्ड में है इंडिया में भी, जब आर्म रेसलिंग हुआ था एकदम टॉप में, एकदम फर्स्ट में जब हुआ था, इंडिया भी था तब, शुरुआत में मतलब हमारा हाँ, टॉप 10 कंट्रीज पोजीशन में से टॉप इंडिया थ्री में में भी था। था, इन टॉप 10 में इंडिया भी था, मतलब ओह, शुरुआत वेरी में, नाइस। तो वैसा हिसाब से कब का रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि मुनाफा हो रहा है ना इससे आपको का, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये बात रही आईएएफ की। नाउ उसके बाद आई एम श्योर अभी रिसेंटली बिकॉज देर आर लॉट ऑफ I would say people who are trying to support the industry. Every level of sports में अगर आप देखेंगे, प्रो कबड्डी देख लीजिए, मतलब हम्म, इट वाज नेवर इन द पिक्चर, बट आप देख लीजिए पिछले आने वाले 3-4 सालों में, because certain people came in and it's become the sports for the world to talk about. So now there are new organizations and associations coming in. So we wanted to know from you, because now you are a part of BCAI. Now how is your journey with BCAI? Can you tell us something about BCAI? बीसीआई आपका जब विंग्स है बुलडॉग का, बुलडॉग इज अ Mm-hmm. मेन यूनिवर्सिटी, बीसीआई लाइक अ कॉलेज, ओके,
सो इट्स अ विंग मतलब। तो बुलडॉग वैसा चीज है। मैं बुलडॉग के बारे में पहले बोलूंगा, बीसीआई के बारे में थोड़ा बाद में बोलूंगा। तो बुलडॉग वेरी ऐसा चीज नाइस। है। तो बुलडॉग ने स्टार्ट किया था कि एक्चुअल आर्म रेसलिंग क्या है। और और उन्होंने दिखाया था कि स्टेज मतलब एसोसिएशंस डजंट मैटर, प्लेयर्स मैटर। अगर प्लेयर्स रहेंगे तभी सब रहेंगे। अगर प्लेयर्स नहीं रहेंगे तो एसोसिएशन स्टेज बना के अच्छा सा एसोसिएशन बना करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मतलब अपना घर में भी कोई एसोसिएशन बना सकता है, स्टेज अपना घर में भी बना सकता है। अगर आप बाहर के मतलब प्लेयर्स को अगर आप मतलब ऐसा फैसिलिटीज इतना भी नहीं चाहिए, फैसिलिटीज प्लेयर्स को मतलब बिल्कुल। 5 स्टार होटल में रहने का, फ्लाइट में रहने जाने का इतना भी बड़ा फैसिलिटीज नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। फिर भी इतना फैसिलिटीज होना चाहिए कि प्लेयर्स मतलब हाँ मैं खेल सकता हूँ अभी, मतलब मेरा खेलने का एनर्जी मेरे पास है अभी। बिल्कुल। तो बुलडॉग जब स्टार्ट हुआ था तब हम लोग को ऑफर आया था बुलडॉग से कि वैसा गेम है, तो ऐसा गेम मतलब बैंगलोर में होगा तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग ने फोर्स नहीं किया कभी हम लोग को कि आप लोग को पार्टिसिपेट करिए, हम लोग बेटर वो देंगे। उन्होंने दिखाया कि हम उन्होंने उनके पास क्या है, उन लोग ने दिखाया कि हम लोग के पास ये ऑप्शन है, हम लोग ये करेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम, ऐसा उन्होंने बोला बुलडॉग। हम्म। तब कुछ मुझे पता चला था कि बुलडॉग और आईएफ मतलब एक साथ कोलैप्स होने वाले थे। तो कुछ पर्सनल ओके। रीजंस के लिए वो लोग कोलैप्स नहीं हुए, मतलब अलग ही हो गए पूरा। तो वैसा कुछ बात था तभी जब हम लोगों ने डिसाइड किया। मतलब हम लोग का आसाम का क्या है, हम लोग का एक जो मेरा दोस्त ही बेसिकली बुलडॉग बुलडॉग आईएएफ के साथ शुरुआत में शायद दे वांटेड टू ब्रिंग इन मोर प्रोफेशनलिज्म टू द एग्जैक्टली स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही था। ओके, सो शायद उन लोग को ओके। तो नहीं नहीं एक्चुअली क्या है देखिए अभी आ, एक अच्छा बंदा एक बुरा बंदे के साथ मतलब पहला हाय हेलो कर सकता है, उसके बाद जब उनको पता चलेगा कि ये बंदा अच्छा है ये बंदा बुरा है, तब वो लोग एक साथ क्लब्स नहीं कर सकेंगे कहीं भी। तो वो लोग डिवाइड बिल्कुल। होंगे होंगे ठीक है। तो वैसा कुछ बात था। तभी बुल लोग ने सोचा कि हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लेयर्स के साथ इतना जाति कर रहे हैं, प्लेयर्स के साथ इतना प्लेयर्स को मतलब वो कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बुलडॉग ने हम लोग को ऑफर दिया। तो अभी मैंने जब मुझे पहला ऑफर आया तो बुलडॉग से, तब मुझे दीपांकर ने मेरा फोन किया। तो ऐसा फोन किया कि प्रांजीत ऐसा बुलडॉग ने ऑफर दिया, मुझे फोन किया, तुझे भी फोन किया क्या? मैंने बोला हाँ मुझे भी फोन किया। तो वो मुझे पूछा मतलब हम लोग कंफर्मेशन ले रहे हैं कि तू जाएगा कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ। तब मैंने उसको बोला कि मैं पहला फोन में ही मैंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। क्या बात है। मतलब हाँ मैं मतलब क्योंकि मैं देखा ना पीछे क्या होगा फ्यूचर में, उन्होंने मतलब हम्म। जो भी है आप कुछ भी आप काम करेंगे ना, आपको अगर आप उस आपको पता लगेगा कि हाँ इस काम में मेरा थोड़ा अच्छा नहीं होगा, इस काम में मेरा मुनाफा नहीं होगा, इस काम में मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे वैसा ही बिल्कुल कुछ है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा ना उस काम में। आप टाइम भी वेस्ट बिल्कुल करेंगे, आपका फायदा भी नहीं होगा, आपका फिजिक मतलब मेंटली भी आप मतलब डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा कुछ था, इसलिए हम बिल्कुल। लोग ने कुछ सोचा भी नहीं हम और क्या था। जब बुलडॉग और आईएफ का डिवाइड हो गया ना, तब मतलब ऐसा कुछ हो गया, मतलब पर्सनली आ गया दोनों चीज। तो आईएफ ने बोला कि अगर कोई हम्म। बुलडॉग में जाएगा तो बैन। ठीक है। ओ। कुछ ऐसा था मतलब। तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं क्या बैन, छोड़ो ये बैन करेगा तो करो यार, खेलना भी नहीं है क्योंकि मतलब कैसे खेलेगा ऐसे। हाँ। हाँ वही तो इसीलिए मतलब हम ये लोग मुझे बुलडॉग। मुझे समझ में नहीं आता है रंजीत। मतलब खुद ही पैसे डालो, खुद ही ट्रेन करो, खुद ही हाँ जिम के लिए फीस भरो, खुद ही हाँ न्यूट्रिशन के लिए देखो, खुद ही अपने स्पोर्ट्स गियर बनाओ, खुद ही प्रैक्टिस करो, खुद ही फॉर्म्स के लिए पैसे भरो, खुद ही हाँ ट्रैवल करो, और सब करने के बाद हाँ बैन उनके पास है ये एक चाबी चाबी। कि बैन कर देंगे आपको। हाँ तो ये बैन कर देंगे। मतलब इतना इतना इफेक्टिव तो फिर रहेगा नहीं, आई एम श्योर। वही तो। और एक बात है मतलब क्या है, वो लोग चल रहे हैं किसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का प्लेयर्स में भी मतलब पांचों उंगली समान नहीं होता है ना। तो प्लेयर्स में बिल्कुल भी कुछ बिल्कुल। प्लेयर्स भी ऐसा कुछ मेंटेलिटी का प्लेयर्स भी हम लोग के इधर पे। हम्म। तो वो लोग जो प्लेयर्स उन लोगों के जैसा जो एसोसिएशन है, उनके जैसा एसोसिएशन उसको जिंदा रख रहे हैं। हम लोग का बिल्कुल दोस्त लोग ही है बहुत सारे, मैं उन लोगों का नाम नहीं बोलूंगा। उन लोगों को पता है कि उधर में मिलेगा भी कुछ नहीं, फिर भी उन लोगों के साथ
मतलब वो लोग है अभी भी, आई एम उन लोग। श्योर, कुछ चीजें हार्ड होती है लाइफ में, बोलते हैं ना, जैसे आप हाँ जो आज ये हार्ड टॉक्स में हमारे सेशंस हो रहे हैं, आई एम श्योर दिस विल इंस्पायर एंड मेक अ वेव एंड क्रिएट अ पाथ फॉर ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द व्यूअर्स. हम्म, बट मुझे ये बताइए, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हाउ हाउ इज योर एक्सपीरियंस अभी? आप मतलब एक तरफ आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, प्रेजेंटली यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ बीसीआई. हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग विद बीसीआई प्रोफेशनली, स्पोर्ट्स के हिसाब से? मैंने आपको पहले ही बोला था कि बीसीए आपका प्लेयर्स को देखते हैं, बीसीए पहले, ओके. ठीक है। हम्म. तो एज अ प्लेयर हम लोग को वही चाहिए कि बिल्कुल. एटलीस्ट हम लोग का कुछ बात वो सुने, ठीक है। तो हम लोग को भी थोड़ा कुछ होता है, कुछ ये है, कुछ हम लोग का रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ा, इतना भी नहीं, थोड़ा रहने का खाने का एक प्लेयर को, उससे ज्यादा नॉर्मल प्लेयर को कुछ नहीं चाहिए। अगर इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप थोड़ा आप ज्यादा देंगे। बिल्कुल. वही बात है, तो वैसा ही मतलब अभी बीसीए का पहला रेफरी हूँ मैं अभी, प्रोफेशनल रेफरी, तो आपका। हाँ, इसके बारे में कुछ बताएंगे, मतलब एज अ एथलीट आपने वॉलंटियर किया टू आल्सो लर्न द क्राफ्ट ऑफ बिकमिंग अ रेफरी, लाइक इज इट समथिंग दैट यू वांट टू आल्सो मेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर करियर? बिकॉज नाउ आप तो पैल सर्टिफाइड है, मतलब अभी तो आप वर्ल्ड पे भी लाइसेंस्ड हैं कि आप जाके जो पैल ऑर्गेनाइज वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हाँ हैं, वो कॉम्पिटिशंस हैं, वहां पे भी आप रेफरी कर सकते हैं. आप अभी पहल के बारे में बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं अभी, मुझे हाल ही में चाइना में जो हुआ था गेम में, मुझे ऑफर भी मिला था मुझे रेफरी करने के लिए। वेरी तो नाइस. हाँ, कुछ कारण के लिए मैं नहीं जा पाया उधर में। तो जील जो हेड रेफरी है, उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि चाइना में आओ, तुम रेफरी करो। तो वैसे मुझे मलेशिया में भी मिला था, लेकिन मैं मलेशिया में खेलने गया था, तो इसलिए मैंने रेफरी नहीं किया। इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली, कोई सर्टिफिकेशन हुआ? हाँ हाँ हाँ, तो अभी वो बैंगलोर में जब वो जील आया था, तो उन्होंने रेफरी सेमिनार रखा था, तो उधर में सबसे पहला वो, मतलब सब फेल Zeal, किया मैं। Zeal, Zeal तो is a certified the director of referees, right? For हाँ, PAL, he's a head referee of PAL। head referee. या, बिल्कुल बिल्कुल. तो वो मुझे सर्टिफाइड किया, इंडिया से मैं ही पास किया, बाकी सब फेल किया। Hard talks, hard talks. हाँ, वही ठीक है. पता नहीं क्या देखा उसने मुझे। हम्म. वही But I'm sure Abhi now, since you're certified, has I'm sure you can now groom more referees in या the coming days एग्जैक्टली, या with एग्जैक्टली। हाँ with हाँ more अभी, proper guidance. या Did मैं अभी, this training help you? सॉरी। Did this training help you? मतलब ये training, do you think has हाँ helped हाँ you to हाँ हाँ हाँ, understand the sports? वो एकदम मतलब पहले जो मतलब रेफरी था ना, मतलब प्रोफेशनल रेफरी या नॉर्मल रेफरी के बीच में बहुत अंतर है। प्रोफेशनल बहुत रेफरी बढ़िया. मतलब बहुत एक नेक्स्ट लेवल का है। मतलब वो लोग जैसे करते हैं रेफरी, हम लोग का इधर में हम लोग देखा ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। तो जिनने जब मुझे सिखाया ऐसा कुछ, मतलब ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मतलब देख के मजा आ जाता है। मतलब हाँ, मतलब गेम लीगल चल रहा है अभी, मतलब ऐसा है कुछ, देखते ही मतलब हाँ, मतलब ये मतलब रेफरी प्रॉपर ड्रेस रेफरी का, हेयर कट अच्छा सा एकदम, मतलब शू, ब्लैक पैंट, ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट, Very मतलब nice. पर को देख के Hmm. मतलब हाँ, हम लोग का अभी अगर खेलने जाते हैं तो हाँ कुछ होगा, मतलब कुछ रेफरी का कुछ वो नहीं होगा, मतलब ऐसा है। और सर्टिफाइड में से भी और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, मतलब रेफरी कुछ करेंगे तो। और आपको अभी पाल अपने बोला था, पाल का थ्रो मुझे, और एक आईएफ का, और एक पीछे थोड़ा जाऊंगा मैं, रिवाइव Hmm. नहीं होगा, आईएफ में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल. आईएफ और बुलडॉग में। Hmm. तो वैसा हुआ, तो मुझे पता है क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग से हूँ, मतलब ठीक है, आर्म स्पोर्ट्स से लेकर आर्म रेसलिंग में, रेसलिंग से लेकर बुलडॉग में। हम लोग का आर्म रेसलिंग का, आर्म जो आईएफ का हाई पोस्ट में है, ठीक है, जो Hmm. प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, वो लोग का काम क्या है? वो लोग का काम है आपको, वो लोग को सेटल करना है सब चीज अच्छी तरह से, सबको एकदम समान तरीके से रखना है। वो लोग क्या किया आपका, जब बुलडॉग के साथ उन लोग का थोड़ा लोचा हो गया, तभी उन्होंने क्या किया, तो बुलडॉग ने क्या किया, बुलडॉग मोजोरिनको को बुलाया, आर्म, गॉडफादर ऑफ आर्म रेसलिंग, वो गॉडफादर Okay. है आर्म रेसलिंग का।
तो मोजोरिंको ऐसा आदमी है, तो वो देखा कि आईएफ क्या कर रहा है, बुलडॉग क्या कर रहा है। उनको सही चाहिए कि आर्म रेसलिंग का प्रमोशन, आर्म रेसलिंग कितना प्रमोट हो रहा है सबके बीच में। तो आईएफ तो प्रमोट तो कर नहीं रहा है। आईएफ प्लेयर्स के साथ बिल्कुल मतलब प्लेयर्स को मतलब प्लेयर्स से मतलब आईएफ मतलब निचोड़ रहा है, जो गन्ना निचोड़ता है ना ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। आईएफ ऐसा कर रहा है। और बुलडॉग वो गन्ने को वो मतलब वो गोबर वोबर दे के मतलब बना रहा है, मतलब ऐसा है कुछ। हम्म। ऑपोजिट है पूरा। बुलडॉग मतलब बना रहा है, आईएफ तोड़ रहा है मतलब। हाँ, जो आई एम भी है, श्योर। हाँ जो भी है, ये चीज ऊपर में उन लोगों को दिखाई दिया, मोजोरिंको को दिखाई दिया, बुलडॉग क्या है, आईएफ क्या है, बुलडॉग क्या कर रहा है, आईएफ क्या कर रहा है। तो मोजोरिंको को भी पसंद आ गया, आईएफ बुलडॉग, सॉरी बुलडॉग पसंद आ गया। तब बुलडॉग के साथ जब मोजोरिंको का टाइप हुआ, तब आईएफ वालों ने क्या किया, वर्ल्ड का जो फेडरेशन है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, बिल्कुल। उधर में हल्ला कर दिया। ऐसा ऐसा हम्म कुछ है, आपको मोजोरिंको को बैन करना पड़ेगा, वर्ल्ड से बैन करना पड़ेगा। हम्म। ये चीज पूरा वर्ल्ड में मतलब तहलबेली हो गए ये, कल मतलब खलबली हो गया पूरा, एकदम पूरा खलबली। वर्ल्ड में। एक एक मतलब मेरा फेसबुक में आपका वर्ल्ड का जितना भी कंट्रीज है, सबका फ्रेंड्स है, हाँ सब हाँ। फ्रेंड्स है आर्म रेसलिंग में, आर्म रेसलिंग का। और हम्म। तो सब लोग पोस्ट कर रहे हैं। कोई रशिया का पोस्ट कर रहा है, कोई जॉर्जिया का पोस्ट कर रहा है, कोई यूएसए का पोस्ट कर रहा है। बैन हम्म। बैन बैन, मतलब कौन बैन किया, क्यों बैन किया, किसके लिए, मतलब बैन आया कहाँ से ये चीज। क्योंकि ओके। अभी पाल मतलब पहले तो आईएफ दिखे, अभी आईएफ था, आईएफ के थ्रू हम लोग जो आपको, मैं जो टी शर्ट पहन रहा हूँ लोटी, ये हम्म। आर्म रेसलिंग का लास्ट स्टेज है, ठीक है। जैसे आपका ओलंपिया होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो जो बॉडी बिल्डर से ओलंपिया में जाने से उसका बॉडी बिल्डिंग सफल, मतलब वो उसका बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग करियर, मतलब हाँ अभी वो मुकाम में आ गया कि वो ओलंपिया खेल लिया उसने। तो हम लोग का ये लोटी है। हम्म। पहले आपका आईएफ आईएफ का थ्रो, जब हम लोग नेशनल खेलते थे, जब चैंपियंस होते थे, तब हम वर्ल्ड खेलने के लिए जाते थे। तब वॉल्स के थ्रू हम लोग लोटी टूर पाल में पार्टिसिपेट करते थे, इसमें जो हम टी शर्ट पहन रहे हम्म। हैं। तो वो पहले टाइप ही था वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ, पीएएल पाल टाइप था, एक साथ ही था। जब ये बैन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तब जब इंडिया ने प्रेशर दिया वर्ल्ड को, कुछ मतलब मस्का मस्का जो है वो किया वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड लीडर्स के साथ। तब हाँ। वर्ल्ड ने भी, क्योंकि मुनाफा सबका होता है, वर्ल्ड का भी होता बिल्कुल है मुनाफा, प्लेयर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ही बंदे थे, मतलब एक ही मेंटेलिटी के बंदे थे, इंडिया का भी सीनियर मतलब मतलब आपका ऑफिशियल्स और वर्ल्ड का ऑफिशियल्स, थोड़ा उनका थिंकिंग एक ही था। तो इसीलिए वर्ल्ड वालों ने मोजोरिंको को बैन कर दिया। और इस हम लोग मतलब उस उसका एक पात्र रहे हैं मतलब ऐसा ऐसा इस ऐसा चीज। रेवोल्यूशन का। हाँ हाँ कल कल इतिहास में हम लोग एक पात्र रहेंगे कि हाँ। ये जो दो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन थे ये भी स्प्लिट हो गए हैं। मतलब ऐसा हुआ कि आपका बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने ओलंपिया को बैन कर दिया। ओके। आर्म जो बॉडी बिल्डर्स का ड्रीम है ओलंपिया, उसको बैन कर दिया। जो आर्म रेसलर्स का ड्रीम है लोटी तोड़ पाल, उसको बैन कर हम्म। दिया। ऐसा चीज हो गया, कुछ खलबली हो गया मतलब पूरा वर्ल्ड में। तभी अभी 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 सबको ये लग रहा है। ये ये तब हुआ जब मोजोरिंको ने मतलब एक्सेप्ट किया कि हम लोग बुलडॉग के साथ हाँ एकदम वही, पार्टनरशिप करेंगे। हाँ एकदम वही वही टाइमिंग में, 2017 का लास्ट में, हम्म। मतलब 2018 का स्टार्टिंग में, ऐसा ठीक है। तब जब मोजोरिंको ने टाइप किया हम लोग के साथ, बढ़िया। तभी वो खलबली पूरा पूरा एकदम वर्ल्ड में छा गया। मतलब अभी अभी हम्म। सब लोग पूछ रहे कि बैन क्यों है, क्यों ऐसा बैन है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन वर्ल्ड खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन पाल के साथ रहेगा। इसलिए बिल्कुल। डॉन मोजोरिन को भी थोड़ा मतलब वो भी निराश हो गए, क्योंकि जो वो प्रोफेशनल्स थे, पाल हम्म। मतलब प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग लीग, प्रोफेशनल्स के लिए है। और आपका हम्म। प्रोफेशनल और एमेच्योर जो वर्ल्ड है, वो एमेच्योर गेम खेलते हैं। तो प्रोफेशनल्स और करेक्ट। टोटली प्रोफेशनल्स वो अलग ही चीज है, एक अलग ही प्लेटफॉर्म है वो। तब मोजोरिंको को अभी थोड़ा, मोजोरिंको भी निराश हो गए, वो सोच रहे कि वो भी क्या करेंगे अभी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक वर्ल्ड फेडरेशन खोल दिया, ओके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग। ओके। अपना एकदम, जो आपका मे बी आने आते हुए जो 5-6 साल होंगे, उस ओलंपिक के साथ आयब होंगे मे बी।
वो लोग काम कर रहे हैं जितना मुझे पता है। तो वैसा उन्होंने खोला। मैंने भी देखा इन लोग का लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, सीरियसनेस, कमिटमेंट जो स्पोर्ट्स के लिए है, इट्स लाइक हाँ it's kudos to both of them. I'm sure या Mazuranko and Kirill, if किरिल I'm yeah the voice या correct. या तो वही चीज है अभी आपका। Hmm. तो उन्होंने स्टार्ट किया आपका जो मतलब उन्होंने एमेच्योर स्टार्ट किया क्योंकि प्रोफेशनल ऑलरेडी उनके पास था ही पाल और बिल्कुल यूआरपी। तो रैंकिंग जो सिस्टम है उनके पास था ही ऑलरेडी आर्म रेसलिंग का। तो उन्होंने अभी एमेच्योर स्टार्ट कर दिया क्योंकि जो प्लेयर बैन है वो कहाँ खेलेंगे। उन्होंने बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का एक मतलब फेडरेशन मतलब क्रिएट किया जो एकदम ओरिजिनल फेडरेशन होगा जब सही है जो मतलब प्लेयर्स के लिए है, ऑफिशियल्स के लिए नहीं है, प्लेयर्स के लिए है वो फेडरेशन क्रिएट। एंड प्रंजीत, यानी कि आने वाले दिनों में ऑल द इंडियन आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट्स को सीरियसली ले रहे हैं, मतलब उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग एमेचर लेवल में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड हाँ लेवल में हाँ आर्म रेसलिंग कर सकते हैं। एकदम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी जब अगर नहीं करेंगे वैसे मतलब अगर वो ये मतलब जो चीज किया उन्होंने जो फेडरेशन खोला वो मतलब बाहर वर्ल्ड लेवल का अगर वो हम्म, नहीं करते तो जो एमेचर्स हैं उन लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलता क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने का बाहर में। तो जो बिल्कुल। प्रोफेशनल्स है जैसे मतलब अभी हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल के जैसे हो गए अभी खेलते खेलते। तो अगर हम लोग को ही मौका मिलेगा क्योंकि हम लोग एमेच्योर नहीं रहे अभी हम लोग वी आर प्रोफेशनल राइट नाउ। तो इसीलिए उन्होंने ये खोला है अभी ऐसा फेडरेशन। तो तो यानी कि आने वाले दिनों में रंजीत, मतलब हाँ पॉसिबिलिटी है कि हमारे इंडिया से भी 100-200 लोग जा सकते हैं एवरी ईयर, कंट्री को आराम से रिप्रेजेंट करके, वो भी फ्लैग गुड को कंडीशन में। रिप्रेजेंट करके। वो भी गुड कंडीशन में आईएफ की जैसा वो भी नहीं है गुड मतलब। कंडीशन में। अच्छा। हाँ वो भी मतलब फ्रेश मतलब आईएफ की तरह मतलब जैसे आपका एक एडवर्टाइज में होता है रिसेंटली एडवर्टाइज मैंने देखा था गर्मी वाला एडवर्टाइज में जो सूरज पाइप लेके उसका सूजता है पूरा पतला हो जाता है ग्लूकोन डी का एडवर्टाइज है। वही वही आईएफ वही करता था। बंदा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हाँ हाँ वही वही चीज है तो एकदम वही। तो हाँ। तो अभी तो उसका थ्रू ही प्रंजीत, अभी उसका थ्रू एक बीसीआई अभी मतलब स्टार्ट हुआ है। बीसीआई है आपका इंडिया का एमेच्योर आर्म रेसलिंग अच्छा। बीसीएआई। और हम्म। बुलडॉग जो आपका आर्म रेसलिंग शोडाउन इज अ प्रोफेशनल इज फॉर प्रोफेशनल्स और बीसीएआई फ्रॉम फॉर एमेच्योर्स। ओके। तो दो अलग चीज है। बुलडॉग है हम्म। आपका यूनिवर्सिटी, बीसीआई एक विंग्स है और शोडाउन एक विंग्स है और यूआरपी भी विंग है। तीन चार विंग्स है। बीसीआई है आपका मेन यूनिवर्सिटी सॉरी आपका बुलडॉग। ओह वेरी नाइस। ये वही तो अभी मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा सा हमें एक चार्ट बना के बता दिया, ट्री जो हाँ हमारे जी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ वेरी वही। वेरी नाइस। तो वेरी अभी नाइस। एमेच्योर भी बीसीआई में खेलेंगे जब उन लोग का आपका जो वो बढ़ता जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो लोग प्रोफेशनल्स में आएंगे यूआरपी खेलेंगे। उससे भी ज्यादा आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वो लोग आपका ग्लोटी खेलेंगे, आपका वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज खेलेंगे जितना भी टॉप 8 अगर अच्छा खेले तो टॉप 8 में आएंगे। टॉप 8 में आने के बाद तो उन लोगों का वो लोग मतलब एकदम टॉप में चले गए वर्ल्ड का रैंक पे आ गए एकदम और उसका तो वही अलग है कुछ। मेरे ख्याल में मैं पूछना चाहूंगा, हाउ वाज योर बज एज अ प्रंजीत साकिया के नाम का जो एक ढिंडोरा पिटता है ना, कि जब आपने बीसीएआई के साथ ज्वाइन किया, बट बिफोर दैट जब आप बुलडॉग के फर्स्ट सीओसी चैंपियन बने, हाउ हम्म वाज योर टेक ऑन दैट? मतलब आपको स्पोर्ट्स कीड़ा ने कवर किया है, लाइक वन ऑफ द नंबर वन स्पोर्ट्स हम्म। पोर्टल जो कि मतलब क्रिकेट को और मतलब सारे टॉप स्पोर्ट्स इंडिया के कवर करते हैं, एंड यू वर कवर्ड बाय स्पोर्ट्स कीड़ा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? स्पोर्ट्स की इट्स लाइक मतलब इट वाज सो फंटास्टिक ओके मुझे कभी पता मतलब स्पोर्ट्स की तो बहुत दूर का ही बात है ऐसा मतलब बुलडॉग स्पोर्ट्स की तो हम लोग सोचा ही नहीं स्पोर्ट्स की हम लोग को कवर करेगा। उसका मतलब वो अनएक्सपेक्टेड मतलब था मतलब शॉक था इट 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 वाज अ शॉक कि हम्म। ठीक है। तो बुलडॉग ने जिससे हम लोग को ट्रीट किया एज अ प्लेयर। तो मुझे एक फनी इंसिडेंट पता है बुलडॉग का।
तो इट्स नॉट फनी, इट्स अ नॉर्मल इंसिडेंट, बट हम लोग के लिए मतलब ये शौक था। मतलब जब हम लोग पहले बुलडॉग में खेलने गए, हम लोग का ग्रूमिंग हुआ, हेयर कट्स हुआ, स्टाइल कुछ ऐसा, मेकअप वेकअप, ग्रूमिंग हुआ हम लोग का। तो हम लोग वैसे ही हम लोग दोस्त के साथ बात कर रहे थे कि ये क्या चीज है ग्रूमिंग क्या है। आर्म रेसलिंग में ग्रूमिंग मतलब जो प्रोफेशनल्स खेलने के लिए है, कुछ हेयर कट, मतलब स्टाइल वैसा कुछ, मतलब ये भी मतलब बहुत ज्यादा शौक था। मतलब ये क्या चीज है ग्रूमिंग। हमारे तो स्टाइल पार्टनर भी एटीट्यूड है ना हमारी पूरी हाँ जर्नी के लिए, अगर आप जानते हैं। वही एटीट्यूड, हाँ क्रिस गेल का वो है ना एटीट्यूड, हाँ जी, जो हाँ जी। ब्रांड एम्बेसडर है वही। तो सब शौक ही था मतलब। अभी तक हम्म। वो स्पोर्ट्स की भी एक शौक था और आने और शौक और आएंगे भी, नए नए शौक अभी प्लेयर्स को दिखाई देंगे, अभी बहुत सारे शौक वैसे कुछ अभी और उसके बहुत। बाद हमें पता चला आपका नाम तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए, लीडिंग पेपर्स में आप थे नेशनल लेवल में, जिसमें आपको कवर किया गया, विच इज आई थिंक अ ब्रिलियंट बूस्ट टू द स्पोर्ट्स। हम्म। नाम की एक चीज आती है ना, मतलब हाँ इतने साल मेहनत करके सडनली यू सी योरसेल्फ एज द, हम जैसे आपके बारे में लिखा गया है कि अ फीनिक्स हु रोज फ्रॉम एशेस, मतलब बहुत बड़ी बात है। बट इन द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग फेसबुक पे हैं रंजीत, आई एम श्योर ऑल योर फ्रेंड्स आर वाचिंग यू, एंड आने वाले दिनों में ऑल द एस्पायरिंग एथलीट्स वुड लाइक टू गो थ्रू दिस टॉक शोज। तो यानी कि हमने अभी देखा, अभी निर्मली नाथ ने लिखा है, सो प्राउड ऑफ यू रंजीत ब्रो। अगर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। वो अनिली संजीव ने मैसेज लिखा है कि देयर आर लॉट ऑफ आर्म रेसलर्स हु क्विट आर्म रेसलिंग ड्यू टू लैक ऑफ एनकरेजमेंट। Now, building is encouraging all. Bulldog is increasing the encouragement in all the या youngsters, and everyone should come forward. Thanks to Bulldog. So, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ सारे व्यूअर्स को, प्लीज शेयर करें एज एज यू आर वाचिंग दिस। आपके वहां पे एक बटन रहता है शेयर का, सो ऑल योर फ्रेंड्स कैन वॉच दिस अलोंग विथ यू, एंड दे शुड ऑल्सो नो दैट दिस इज अ स्पोर्ट दैट दे कैन स्प्रेड। इसमें सब लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। सो हाँ, अभी अगला सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है प्रंजीत जी आपके लिए। सीओसी तो आप बन चुके हैं, सारे मेडल्स आप जीते हैं, जो कि हर एक गोल्ड 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 पे आपने जैसे बताया गया। बट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, मतलब एज अ स्पोर्ट, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन द कमिंग ईयर्स? ये कैलेंडर ये साल का तो बहुत बिजी था, जो मैंने कैलेंडर देखा था आप लोगों का, वो तो मतलब इतने सारे कंपटीशन स्टेट लेवल पे आ रहे थे, वर्ल्ड लेवल पे आ रहे थे। सो प्लस आपका फ्लोरिडा में आई बिलीव यू हैव द जोल्टी टूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है वर्ल्ड आप लोग का। चैंपियनशिप, हाँ फ्लोरिडा में है। हाँ, तो हाउ, व्हाट इज योर गोल फॉर द कमिंग मंथ्स एंड इयर्स? अभी तो 2020 ऐसा गया, सबके लिए खराब गया, मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब गया थोड़ा। आई तो अंडरस्टैंड, बिल्कुल। वही तो, इसीलिए जो मेरा प्रेशर था, मेरा प्रैक्टिस का प्रेशर था, मेरा अभी प्रेशर 100% हो गया है पूरा। जो हम्म। अभी मेरा मेहनत ज्यादा होगा अभी। तो मैं घर छोड़ के भी नहीं जा सक, मतलब घर को मतलब छोड़ 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 मतलब छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ। मतलब प्रैक्टिस भी बिल्कुल। करना है, खेलने भी जाना है, मेंटेन भी करना है, सब कुछ चीज अभी बहुत हार्ड हो गया है तभी। लेकिन हम्म। मुझे अभी तक मैं जो जो गोल है मेरा, मतलब जो हासिल करना है वो है आपका टॉप 8। टॉप करेक्ट। 8 मेरा लास्ट गोल है, उससे उससे ऊपर है भी नहीं कुछ। टॉप एट के ऊपर कुछ है भी नहीं वर्ल्ड में आर्म रेसलिंग में। सो टॉप 8 हम्म। में जब मैं पार्टिसिपेट करूंगा तभी मेरा गोल कंप्लीट होगा पहला। तभी अभी वो बहुत, अभी बहुत टाइम भी है। वो भी टॉप 8 में आने का बहुत टाइम है, क्योंकि टॉप 8 लेवल कुछ अलग ही है उसका लेवल कुछ। वो मतलब अभी इंडिया में आर्म रेसलिंग इंडियन आर्म रेसलिंग इस थोड़ा डिफरेंट है। इंडियन आर्म रेसलिंग नॉर्मल जो बाहर का आर्म रेसलर्स है, उन लोगों का टेक्निक्स, उन लोगों का प्रैक्टिस, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है वैसा कुछ आर्म रेसलर्स के लिए। बिल्कुल। बाहर में बहुत बिल्कुल। फैसिलिटीज बहुत है। आर्म रेसलिंग का जिम है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है आर्म रेसलिंग को, गवर्नमेंट के। इसलिए मैंने गवर्नमेंट वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया था अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट के अच्छा। साथ 0% रोल भी नहीं है। बिल्कुल। फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने गवर्नमेंट का नाम ही नहीं लिया, गवर्नमेंट इस लिस्ट में है बट ही नहीं। बट ये बताइए, नाउ नाउ यू आर आल्सो नाउ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने नाउ यू आर प्रेसिडेंट ऑफ योर ओन असम स्टेट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन। तो आप गवर्नमेंट के साथ अप्रोच कर रहे हैं टू सपोर्ट द अपकमिंग एथलीट, एंड
to have a government aid for the upcoming travel. इसके लिए क्या कर रहे हैं आप एज अ प्रेसिडेंट? नहीं, एक बात है आपका, गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब अभी आप प्रेसिडेंट बने हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या आने वाले सालों पे? अभी इलेक्शंस के बाद कौन स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा पता नहीं। अभी रिसेंटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था हम लोग का, नाम नहीं बोलूंगा, मेंशन नहीं करूंगा उनको, उनके पास मैं एक बार गया था। उनका थोड़ा मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा उनका और हम लोग का। तो हम लोग जब आईएफ में था, मुझे पता है आईएफ में था, तो एक बार हम लोग गए थे उनके पास। तो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनको मैं नेशनल चैंपियन हूँ और मैं वर्ल्ड खेलने के लिए बाहर जाऊंगा, और मैं उनके पास गया हूँ कि कुछ स्कीम है क्या, गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है क्या एक नेशनल प्लेयर को वर्ल्ड खेल ले मतलब भेजने के लिए। तब मैं जब एंट्री किया उनके रूम में, कैबिन में, तभी आपका वो हम लोग को, वो उन्होंने हमको देखा ही नहीं। मतलब वैसे ऐसे आओ, मतलब बैठने के लिए भी तो दूर की बात है, नॉर्मली बोला उन्होंने। वो हमारे नाम भी नहीं पूछे, हमारा नाम क्या है, खेल तो दूर का ही बात है, हम लोग क्या खेलने के लिए खेल के आए इधर, कितना मेहनत करके आए, वो तो दूसरा दूर का ही बात है। उन्होंने हम लोग का नाम ही नहीं पूछा। ठीक है, तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसा है, मतलब कैसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अगर वैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे तो एज अ प्रेसिडेंट मैं गवर्नमेंट के पास कभी भी नहीं जाऊंगा, कि फायदा ही नहीं है कुछ। वैसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे तो जो भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, बिल्कुल, ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऐसा मेंटेलिटी का स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे तो उनके पास जाने का कोई फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। एज अ प्रेसिडेंट हम लोग ने एक प्लान बनाया है कुछ। ये प्लान मैं आपके साथ अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये सरप्राइज होगा। ठीक है, वैसा एक प्लान है। अगले वाले सेशन में हम जरूर पूछेंगे आपसे। तब पूछेंगे नहीं, तब हम लोग देखेंगे। मेरा हम लोग का प्लान बढ़िया, तब तक हो बहुत बढ़िया। जाएगा। वही चीज है। एज अ प्लेयर हम लोग को पता है कि मेहनत क्या है, जर्नी कैसे करते हैं, इतना थक के जाते हैं हम लोग, पीस पीस के जाते हैं खेलने के लिए। तो एज अ प्लेयर हमको पता है कि एज अ एक प्लेयर को क्या क्या चाहिए, प्लेयर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका मतलब कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी कितना है देने का। मतलब कोई भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी 3,000 देने के लिए मतलब राजी हो सकता है, लेकिन एक गरीब लड़का जिसका मतलब गुजारा कुछ चलता है, अगर वो अच्छा खेलता है तो उसका तो वो भी नहीं होगा। 3,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल। तो वैसा कुछ चीजें हम लोग बहुत प्लान किया है, देखे मतलब रंजीत, कुछ लास्ट सवाल है हमारे शो के लिए कि आप एज एन एथलीट, आई थिंक यू हैव आल्सो डन वेल। जब मैं आपके साथ लास्ट टाइम बात कर रहा था, आई केम टू नो दैट विनिंग, आपने जो अर्निंग्स ली है विनिंग्स में, वो इज एज गुड एज क्लोज टू टिल डेट 7 लाख रुपीस प्लस, व्हिच इज लाइक an inspiration to all the young athlete and people who want to make this as a career, because I'm sure with the inclusion of more such I would say partnerships, sports का तो face and outlook बड़ा ही होने वाला है। If I'm not wrong, first nationals which was conducted in Delhi by Sandeep and Rohit, I think they have done an incredible job. I think if I'm not wrong, पहली बार देखा है we had nearly about 15 plus sponsors on board. Yeah, 15 plus. Which is I think the sports is getting its due now. Yeah. साहिल खान भी था, हंग वाटर, बहुत बड़ा स्पॉन्सर था, बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे उधर में। So मतलब ये एक sport eventually is becoming a serious opportunity for people who want to also make it as a part of their career journey. Am I correct, Pranjit? Exactly. So any message that you want to give to our aspiring athletes, plus your viewers, plus your fans, plus the upcoming generation of arm wrestling players in India? Any kind of I would say message which can really inspire them? तो पहला बात मैं यही कहूंगा कि सही चुनो, मतलब सही चीज चूज करो, क्योंकि पहला चूज ही गलत हो गया तो आपका ट्रेन ही गलत चूज किया तो आपने अपना आप तो मतलब मंजिल पे पहुंचेंगे ही नहीं।
कहीं पे अलग पे चला जाएंगे, अलग जगह पे चला जाएंगे। तो आपको ट्रेन चूज करना है पूरा एकदम सही वाला, जो आपको मंजिल में लेके जाए, और मेहनत तो करना ही है आपको। तो ये पैसा देके भी खरीदने वाला चीज नहीं है पावर। बिल्कुल बिल्कुल। मेडल्स पैसा देके भी आपको नहीं मिलेगा, तो मेहनत तो करना ही है आपको। और जितना हो सके उतना आप, अब इंटरनेट सबका हाथों में इंटरनेट है अभी। तो अगर किसी को कुछ जानना है तो इंटरनेट में टाइप करने से भी सब आ जाता है, क्या क्या कहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तभी जितना हो सके उतना देखिए, जितना हो सके उतना मतलब सर्च कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद चूज कीजिए। वो कोई वो वैसा नहीं है कि हाँ बुलडॉग ही सही है, बुलडॉग में ही आई है, आई गलत है, आईएफ में जाए, वैसा कुछ नहीं है। और कभी भी मैं आपको पहले ही बोला था, कभी भी अगर देखिए, एक अच्छा प्लेयर, ठीक है, और एक बेस प्लेयर, दो अलग अलग चीज है लेकिन, ठीक है। एक अच्छा प्लेयर मतलब एक अच्छा प्लेयर होने के लिए आपको नॉर्मली आप जीते सही है, आप अच्छा प्लेयर हो गए, लेकिन एक बेस्ट प्लेयर होने के लिए आपको जीतना भी है, आपका बिहेवियर भी है, आपका अच्छा होना है सबके साथ, पोलाइट भी रहना है, और सही में रहना है, मतलब ऐसा चीज है। तो बेस्ट बिल्कुल प्लेयर अच्छा प्लेयर में बहुत अंतर है, मतलब ठीक है। अच्छा प्लेयर सब हो सकते हैं, अच्छा मतलब गोल मारने से अच्छा प्लेयर हो सकते हैं, बेस्ट प्लेयर बहुत कम है। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर बेस्ट थे, वैसे करेक्ट। वही चीज है। तो आपका आ, 2020 के हिसाब से बताया जाए तो पिछले एक साल में हमने जो नजारा देखा है इस आर्म रेसलिंग स्पोर्ट्स जर्नी में, आई थिंक रणजीत साइकिया का नाम तो डेफिनेटली टॉप, आई वुड से 5 प्लेयर्स में माना जाना चाहिए, बिकॉज यू आर मिस्टर कूल एंड ओहम हंटर हैं आप, उस तरीके से आपको जाना जाता है। बट एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आप प्रेजेंटली वर्ल्ड नंबर 4th हैं रैंक्ड URPA वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में। सो वी वांट टू सी यू बैक इन नंबर 1 पोजीशन Pranjit ji very soon. That is what I think we all wish to see you achieve and stay there for the coming years. वो मेहनत ही पता चलेगा अभी, आने वाले वक्त में पता चलेगा अभी। बट वही बट इट्स फैंटास्टिक Pranjit जी, आपके साथ जो हमने समय बिताया है, आई थिंक इट्स वंडरफुल इनपुट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयरिंग प्लस रियल फैक्ट्स जो इंडस्ट्री के हैं आपने हमारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दर्शकों को दिखाया है। इट्स फैंटास्टिक, ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लीट टीम प्लस बुलडॉग, we would like to congratulate you for your journey. We would like to wish you a super I would say rising sun phoenix की खिताब कि आप उस मुकाम में पहुंचे। We want you to bring more laurel name to our nation, and I am sure we want to again have you back, because जिस तरीके से आपने पूरी जर्नी बताई है, it becomes very helpful for people to know the insights of the industry. जैसे आपने बताया कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एंड हर एक एस्पायरिंग करियर के लिए ये सारे फाउंडेशन जरूरी हैं, which you feel that currently there are people like Bulldog who are building that foundation process for the sport. We are so thankful to have you on this amazing Saturday, and we're looking forward to have you back again very soon, and wish you all the very best. I would like to definitely see you soon, and for all our viewers, all our friends, please share it with all your friends and family. There is a button called share, usko press kijiye so that more and more people can know about our sport. Kyunki itna bada country hai, I'm sure this can become one of the another big success story sports in the world map, where we can bring our country proud. And last but not the least, thank you so much Pranjit, Ohom Hunter. one more thing last में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही ये शो आपके लिए है। नहीं आपके बाद आप बोल लीजिए पहले। नहीं बिल्कुल बताइए। वही लास्ट वर्ड है आपका, बुलडॉग इज द फ्यूचर, आर्म रेसलिंग इज द फ्यूचर, यही लास्ट है। Okay, thank you so much, and thank you everybody. We will see you very soon with our next episode with another new amazing athlete ka story, unki life, unki journey on our very special Hard Talk.
Till then, good luck, take care, have an amazing Sunday, and enjoy and stay safe. Good luck. Thank you, Pranjit. Bye bye. Bye. See you.